نابینا افراد سرکاری ملازمت نہ ملنے پر سراپا احتجاج، مظاہرین نے کراچی پریس کی سڑک بلاک کر دی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں کراچی پریس کلب کے باہر موجود ہوں اور نابینا افراد کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کراچی پریس کلب کے آنے والی سڑک جو ہے ان کی جانب سے بند کر دی گئی ہے اور نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ 5% جو حکومت کی جانب سے کوٹا مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ ملازمتیں دی جائیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں یہاں پر احتجاجی مظاہرین سے، ہم ان کی زبانی جانتے ہیں۔ کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ جی السلام علیکم، میرا نام ریحان قاسم ہے اور پچھلے 4 سالوں سے 2021 سے ہم یہاں پروٹیسٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو ہمارا 5% ڈسیبل کوٹا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، ہمیں مستقل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو ہے وہ ہمارے یہی مطالبات ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ جو ایجوکیٹڈ ہے اور جو ہمارا 5% ڈسیبل کوٹا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے اوور آل سندھ میں۔ تو میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس پر جو ہے وہ ایکشن لیں۔ شکریہ۔ جی بالکل، ان کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں۔ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے اور احتجاجی مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو نابینا افراد احتجاج کر رہے ہیں ان کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے۔ سڑک جو ہے پریس کلب کی بند کر دی گئی ہے۔ ایک طرف آنے والا راستہ جو ہے وہ پریس کلب کا بند ہو چکا ہے۔ نابینا افراد یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اپنے حق کے لیے جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ نوٹس لیں۔ جی، غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر محکمہ داخلہ سندھ کا ایکشن۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلدیات، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور تمام ڈویژنل کمشنرز کو خط ارسال کر دیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے آزاد نوحریوں سے۔ جی آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی سمیت صوبے بھر میں غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر محکمہ داخلہ سندھ ایکشن میں آ گیا ہے اور انہوں نے جو ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلدیات، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا تمام ڈویژنل کمشنر کو خط ارسال کر دیا۔ یہ خط محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے ارسال کیا گیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کو پوری طور پر روک دیا جائے اور غیر قانونی تعمیرات غیر جیسے سوسائٹیز کو بھی روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ روڈز کی غیر قانونی تعمیرات اور سرکاری زمین پر تعمیرات کو بھی روکا جائے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ 2 افسران کو فوکل پرسن تعینات کر دیا گیا، جس میں وقار احمد اور ظہیر احمد شامل ہوں گے، جن کو فوکل پرسن کی ذمہ داری دے دی ہے۔ اب تک کتنی کارروائیں کی گئی جواب دیا جائے، اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ فوکل پرسن کو تمام جو اضلاع کے انتظامیہ ان کو فوری طور پر آگاہ کرے اور جو اس طرح کی جو کارروائی ہیں ان میں تیزی لائی جائے۔ جی ٹھیک ہے آزاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے وفاقی وزیر مصدق ملک کے ہمراہ TP3 کا دورہ کیا۔ واٹر کارپوریشن حکام نے وفاقی وزیر کو منصوبے کے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر واٹر کارپوریشن اسد اللہ خان اور دیگر حکام بھی دورے میں شریک تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ جی شعیب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے وفاقی وزیر مصدق ملک کے ہمراہ جو ہے TP3 کا دورہ کیا ہے۔ واٹر کارپوریشن حکام نے وفاقی وزیر کو منصوبے کی موجودہ صورتحال پر جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ TP3 اور TP5 کے لیے وفاق اور KPT سے بات کرنے کی یقین دہانی بھی وفاقی وزیر کی جانب سے جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت ماحول دوست منصوبوں کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ تعاون فراہم کرے گی، جبکہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وفاق کراچی کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے منصوبے ہونے چاہیے جن سے براہ راست عوام اور شہر کو فائدہ ہو۔ KPT کو بھی شامل کریں گے تاکہ مزید بہتری اور تعاون حاصل ہو سکے، جبکہ کراچی میں بین الاقوامی معیار کے منصوبے ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس موقع پر جو ہے وفاقی وزیر مصدق ملک کے ہمراہ جو ہے واٹر کارپوریشن کے حکام، چیف آپریٹنگ آفیسر واٹر کارپوریشن اسد اللہ خان و دیگر بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ میئر کراچی کا وفاقی وزیر سے اس موقع پر کہنا تھا کہ سیوریج کا گندا پانی صاف کر کے صنعتوں کو فراہم کیا جائے گا۔ صاف شدہ پانی سمندر میں جانے کے بعد آبی حیات کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس وقت جو ہے روزانہ
35 मिलियन गैलन पानी ट्रीट करके समंदर बुट किया जा रहा है। जी शुएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध सरकार ने 17 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आजाद नोहड़ियों से। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 17, 18 और 19 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसके 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन अफसर वज़ीर सेक्रेटरीट सरमद अली शेख का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर खिपरो जिला सांगड़ तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर खिपरो जिला सांगड़ नबी बख्श सोलंकी का तबादला करके उनको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ठट्टा तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ठट्टा का ओहदा खाली था। जबकि इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर तरक्की और मनसूबाबंदी कमिश्नर ऑफिस में जोखा प्रेमचंद मेंगवार का तबादला करके उनको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 टंडोरायार तैनात कर दिया गया, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 टंडोरायार मोहम्मद इब्राहिम आलमानी को ओहदे से हटा दिया गया है। उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम जो आलमानी उनको हालिया ही 18 से 19 ग्रेड में तरक्की दे दी गई थी। जी ठीक है, आजाद नोहड़ी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबर आपको दें कि अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों ने आज तीसरे रोज भी ओपीडीज का बायकॉट करते हुए शदीद एहतजाज किया। डॉक्टर्स का कहना था कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ओपीडीज बंद होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी रहा। वजीफे की अदम अदायगी पर डॉक्टर्स ने तमाम ओपीडीज का बायकाट कर दिया और नारेबाजी भी की। मेयर कराची के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात भी किसी नतीजे पर न पहुंच सके। एहतजाजी डॉक्टर्स ने बुध के रोज मेयर कराची के दफ्तर का घेराव का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हमारा सारा फैसला आगे फॉरवर्ड किया हुआ है बजट के लिए, सैलरीज के लिए, लेकिन वो कब तक अप्रूव होगा कुछ नहीं पता। हम ऐसा लग रहा था कि हम जिस मोटिव से गए थे हम खाली हाथ ही वापस आए। अगला लाएमल हमारा ये होगा, अगर हमारे 1 से 2 दिन तक हमारी डिमांड्स जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे, अगला लाएमल होगा इंशाअल्लाह KMC के बाहर हम धरना देंगे। ओपीडीज बंद होने से मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मरीजों को सख्त परेशानी का सामना रहा। मरीजों का कहना था कि दूर दराज से किराया खर्च करके अस्पताल पहुँचे, मगर ओपीडीज बंद होने से मुश्किलात का सामना है। और क्या नाम से आए तो सब बंद है। बच्चों को इतना बुखार और इतना ज़्यादा, इसको भी बच्ची को भी बुखार, इसको भी बुखार है, मगर बंद है। इससे पहले आए तो खुला हुआ था, अभी आए तो सब बंद है। चेकअप तो होते हैं मगर इस दफ़ा आए तो वही, कल रात से मुझे बहुत परेशानी थी तो अभी आए तो पता चला किराया लगा कर आए और अभी बंद है ये। अब मैं क्या करूँगी, इतनी तकलीफ़ में मैं आई हूँ, अभी कोई मेडिसिन भी नहीं मिलेगी, कहीं दिखा भी नहीं सकती और इतना अफोर्ड भी नहीं सकती दूसरे जगह। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी ने बताया कि कुछ डॉक्टर्स का वजीफा उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी की अदायगी में कुछ वक्त लगेगा। मुज़ाकरात भी हुए हैं और बेहतरी के इकदाम भी जारी हैं। जो रेगुलर तनख्वाह जो कि जुमे को आ चुकी थी, पीचीज़ की 136 लोगों की वो तनख्वाह इनकी आ चुकी है इनके अकाउंटों में। इसी तरह जो HOs रेगुलर है उनकी भी तनख्वाह आ चुकी है जुमे को। अब जो मसला है वो ये है कि उनके अकाउंट्स डिटेल हमारे पास नहीं थी, वो हमने सबमिट कर दी है। इस वक्त स्क्रूटनी में है, इंशाल्लाह ताला वो भी 2 दिन में इनकी सैलरी आ जाएगी। ये वो लोग हैं जो हाउस ऑफिसर्स जो न्यू इंडक्टीज हैं। बाद अज़ां डॉक्टरों ने एहतजाज खत्म कर दिया, ताहम ऐलान किया कि कल मजीद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। छोटी बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट अब शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होंगी। मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ताजर रहनुमा अब्दुल्ला शारी ने कहा कि हुकूमत पहले 50 लाख नंबर प्लेट्स जारी करे, क्योंकि फरवरी से अब तक रजिस्ट्रेशन करने वालों को नंबर प्लेट्स नहीं मिली। उनका कहना था कि नंबर प्लेट तभी मलकियत होगी जब मालिकान के पास मौजूद हो। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट में। नंबर प्लेट्स को शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला, मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन ने सवालात उठा दिए। मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन ने महकमा एक्साइज के इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसके तहत छोटी और बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट अब शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक की जाएंगी। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैसले को कम अज़ कम 1 साल के लिए मौखर किया जाए। मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की आप देखते हैं 90% जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो यानी कि जो भी नंबर प्लेट का मालिक होगा वो साल में 4 दफ़ा तो नंबर प्लेट ही चेंज कराता फिरेगा। अब्दुल्ला शारी ने कहा कि हुकूमत को सबसे पहले 50 लाख नंबर प्लेट्स जारी करनी चाहिए,
क्योंकि फरवरी से अब तक जिन शहरियों ने गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई है उन्हें नंबर प्लेट फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट्स मेरी मिल्कियत तब होगी जब वो मेरे पास होगी। फैब से लेके अब तक की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लोगों ने नंबर प्लेट्स की कराई है या एक्साइज के ऑफिस में जाके नंबर प्लेट की अपने रजिस्ट्रेशन कराई है, उनको भी नहीं मिली है। और पिछले 1 महीने से जो मोटरसाइकिल या कार रजिस्टर्ड हो रही है उसकी नंबर प्लेट भी नहीं आ रही है। तो पहले तो 50 लाख नंबर प्लेट जिनकी रकम ली जा चुकी है उनको मुहैया करें। ताजिर मोटरसाइकिल डीलर्स ने वाजे किया कि एक्साइज डिपार्टमेंट को ताजिरों के साथ मिलकर मार्केटों में फैसिलिटेशन सेंटर कायम करने चाहिए ताकि शहरियों को सहूलत मैसर हो। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। करंगी 6 नंबर में सेंट्री एसोसिएशन होलसेल मार्केट के 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज में तकरीब सजाई गई। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद शेख हबीब ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हुसैन से। जे मुबशर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज कोरंगी लांढी सैनिटरी एसोसिएशन हॉल सेल्स मार्केट्स की जानिब से जो है वो तकरीब का इनकाद किया गया है। 9 मुंतखब अहदेदारान के जो है वो इलेक्शंस हुए थे। इसी हवाले से सिंध ताजिर इत्तेहाद हैं शेख हबीब साहब, इनसे जानते हैं। बताइएगा सर, आज ये तकरीब है, इसका क्या मकसद है और क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोरंगी लांडी सैनिटरी एसोसिएशन मार्केट है जिसमें 9 मुंतखब हमारे आसिफ गुलफाम भाई और दीगर कमेटी के अरकान जो अभी इलेक्शन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुए हैं, तो मैं इनको सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हारने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं और दुकानदार हैं, तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दोनों पार्टी है अपना काम, अपना किरदार अपने ताजिरों के लिए, अपने लोगों के लिए मिलजुल के जो है वो अपना किरदार अदा करे। और कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद जो है इनकी छाना बशाना खड़ी है। जब ये आवाज़ भी लगाएंगे, किसी काम के लिए कहेंगे, तो कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद चेयरमैन शेख हबीब साहब जो है इनकी सरपरस्ती के लिए हर वक्त हाजिर है। जैसा कि इनका कहना है कि 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में जो है वो तकरीब का इनकाद किया गया है। इनका कहना है कि फ़तह करने वाले और जिनको शिकस्त हुई है दोनों के हमरा साथ हैं। तमाम तर कोरंगी मार्केट्स जो है सैनिटरी मार्केट्स के मसाइल को हल करने के लिए भी जो सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं शेख हबीब वो शाना बशाना खड़े हैं और आने वाले रोज़ में मज़ीद हिकमत अमली भी जो है वो बनाई जाएगी। जी। महकमा जंगलात की जमीन के ठेकों का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को टेंडर जारी करने से रोक दिया। अदालत ने आइंदा समाअत तक ठेकों का मामला इसी हालत में बरकरार रखने का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध, महकमा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आपको बता रही हैं कि महकमा जंगलात की ज़मीन के ठेकों का तनाज़ा है। सिंध हाई कोर्ट ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को टेंडर जारी करने से रोक दिया। अदालत ने आइंदा समाअत तक ठेकों का मामला इसी हालत में बरकरार रखने का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध, महकमा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और दीगर को नोटिस जारी किए। खबर आपको दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर को मंदी छाई रही। 100 इंडेक्स 677 पॉइंट्स कमी के बाद 1,48,815 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सरमायाकार मोहतात मुनाफे का दबाव, स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छा गए। मार्केट में 100 इंडेक्स दिन भर के दौरान 657 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,48,815 रुपए की कमी सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने एक मौके पर 1,50,069 रुपए की बुलंद तरीन और 1,48,757 की कम तरीन सतह को छुआ। मार्केट में दिन भर के दौरान 26 अरब 34 करोड़ रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ। मजमूई तौर पर 469 कंपनियों के शेयर्स की लेन देन हुई, जिनमें से 204 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ, जबकि 246 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इस दौरान 29 कंपनियों के शेयर्स मुस्तहकम रहे। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक प्रॉफिट टैगिंग के बाइस मार्केट मंदी का शिकार रही। देखिए सेंटिमेंट और तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट टैगिंग मार्केट में देखी जा रही है। ये रोल ओवर वीक भी है और यही वजह है कि मार्केट ने आगाज़ तो पॉजिटिव किया था, उसके बाद मार्केट में स्लाइडली हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टैगिंग है 1,50,000 और 1,49,000 का जो सपोर्ट थी वो भी मार्केट ने जो है ना आज ब्रेक किए। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। प्रॉफिट टैगिंग का फैक्टर है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के जो टेक्सटाइल की हमारा मेजर इंपोर्ट है, मेजर एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर है, तो हम वेरी सून देखेंगे जिस तरह फिगर आ रहे हैं और हमारे इंटरनेशनल जो है बातचीत चल रही है, तो जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है टेक्सटाइल के हवाले से तो टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पे अच्छा रिएक्ट करेगा।
सरमायाकारों के मुतात रवैये और फ़रोख्त के दबाव के बाइस मार्केट मंदी का शिकार रही। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो से कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द ने मुलाकात की। सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एडिशनल आईजी ने सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। आपको बता रही हैं कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो से कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द ने मुलाकात की है। सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एडिशनल आईजी ने सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते मुबशिर हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि एडिशनल आईजी कराची हैं जावेद आलम ओढो, उनसे जो है वो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वक्त की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सहाफ़ियों की दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। कराची पुलिस चीफ को सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो वारदातों की फहरिस्त पेश की गई है। एडिशनल आईजी का सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान भी किया गया है। कराची पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान मुश्तरका सेमिनार का भी जो है वो जल्द इनेकाद किया जाएगा। जी ठीक है, मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फ्रेंच कल्चरल सेंटर में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मुनासबत से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कराची के फोटोग्राफर्स की खदमात का एतराफ़ किया गया। दी आइवरी कोस्ट के एजाज़ी कौंसल जनरल फजल करीम दादा भाई की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहते हैं कि फोटोग्राफर्स लम्हों को महफूज करके यादगार बनाते हैं। मज़ीद क्या कहना था जानते हैं राहील बेग से। जी राहील बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रेंच कल्चर खाने में, जहां पर फ़ोटोग्राफ़र्स के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद किया गया था, जो कि बारिशों के बाद आज इस तकरीब को मुनक्किद किया गया। और इस वक्त दी आइवरी कोस्ट के एजाज़ी कौंसल जनरल फजल करीम दादा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस तरह की तकरीबात और ख़ास तौर पर जो लोग कैमरे के पीछे होते हैं, जिन्हें फ़ोटोग्राफ़र या कैमरा मैन हैं, उनकी सलाहियतों को या उन्हें खैराज तहसीन पेश करने के लिए इस तरह की तकरीबात कितनी अहम है? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफ़र को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को सेलिब्रेट किया है। इट्स ऑल अबाउट कैप्चरिंग मोमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, हिस्ट्रीज़ के अंदर ये जाते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं अपने फ़ोटोग्राफ़र एसोसिएशन वालों को सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि वो जितने भी मुश्किल हालात हों वो अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से लाते हुए जो है इवेंट्स को कैप्चर करते हैं, मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, और वो मोमेंट्स आगे जाकर हिस्ट्री भी बनती हैं। तो एलियांस फ्रांसे को बहुत बहुत मुबारकबाद, और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफरों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल जी, हमारे साथ आइवरी कोस्ट के एजाज़ी कौंसल जनरल मौजूद थे। यहाँ पर फोटोग्राफर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, और आज के इस तकरीब का मकसद उनकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उनके फ़न की पसीराई करना है और उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। और इस तकरीब में जहाँ पर दीगर ममालिक के कौंसल जनरल मौजूद थे, और आज इस जश्न में केक भी काटा गया और फोटोग्राफर्स की सलाहियतों को खराज पेश किया गया। जी खबर आपको दें कि माह रबीउल अव्वल की आमद दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ फैज़ान मदीना को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में फैज़ान मदीना में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। मदनी मुज़ाकिरा समेत दीगर दुआया इज्तिमात होंगे। मुल्क से हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन इज्तिमात में शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते हैं शायान अली से। जी शायान बताइएगा। देखिए, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वो विलादत का ये माह है, 12 रबी अव्वल की खुसूसी तैयारियां की जाती है, लेकिन माह रबी अव्वल का आगाज़ होते ही जो वो तैयारियां कर ली जाती हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी जो है हमने सिटी 21 के नाज़रीन को दिखाया है कि फैज़ान मदीना में जो है तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। इस वक्त भी जो है यहाँ पर बरकी कुमकुमों से जो है मुकम्मल इस मस्जिद को सजा दिया गया है। चप्पे चप्पे पे जो है हमें खूबसूरत लाइटिंग होती नज़र आ रही है। इसी तरह जो है वो दूर दराज से शहरियों की आमदो रफ्त का भी सिलसिला जारी है। शहरी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है फैज़ान मदीना में आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो मिलाद का भी एहतमाम किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो है इज्तिमात भी किया जा रहा है, जिसपे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो ज़िंदगी पर रोशनी भी डाली जा रही है, जबकि इसके साथ साथ जो है सुन्नत और दीगर मामलात पर भी जो बात की जा रही है। दूर दराज से जो है लोग आ रहे हैं, अपने
بچوں کو بھی ساتھ میں لا رہے ہیں. ماشاءاللہ سے عید کا سما جو ہے ایسا لگ رہا ہے اور جو ہے کہا جا رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کی جو ہے خصوصی تیاری کی جاتی ہے, جس کے تحت جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں چھوٹی بڑی جو ہے محفل بھی رکھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مرکزی جلوس بھی جو ہے برآمد کیا جاتا ہے, جس کی میں اگر سیکیورٹی کی بات کروں تو سیکیورٹی کے اچھے خاصے انتظامات کیے جاتے ہیں, اور جس پہ پولیس اور رینجرز کی باری نفری بھی تعینات کی جاتی ہے. جبکہ اس ماہ کے آغاز ہوتے ہی جو ہے تمام تر چھوٹی بڑی اگر بات کروں مساجد کو, ان کو بھی جو ہے کمکموں سے جو ہے سجا دیا جاتا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلی گلی نگر جو ہے ہمیں محفلیں ہوتی نظر آتی ہیں. اب یہ ماہ کا جیسے آغاز ہوا ہے, اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں فیضان مدینہ سے. یہاں پر بھی جو ہے بڑی تعداد میں شہری دور سے اس وقت بھی جو ہے یہاں پہ سجاوٹ کا کام جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر میں جو ہے نماز کا اہتمام کیا جائے گا, جس کے بعد جو ہے پھر محفل کا بھی اہتمام کیا جائے گا. یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح 15 روز تک فیضان مدینہ میں جو ہے وقفے سے جاری رہتا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 14 دن تک جو ہے یہاں پر اس طرح جو ہے محفلیں سجائی جاتی ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 12 ربیع الاول کی خصوصی جو ہے یہاں پر تقریب بھی کی جاتی ہے, جس پہ جو ہے وہ علماء کرام خطاب بھی فرماتے ہیں اور محفلیں بھی ہوتی ہے, درود شریف بھی جو ہے پڑھے جاتے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہر کے تمام تر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی جو چھوٹی بڑی اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. خواتین کے بھی جو ہے وہ پروگرامز رکھے جاتے ہیں, بچوں کے بھی رکھے جاتے ہیں اور مردوں کے بھی رکھے جاتے ہیں, اور مرکزی جلوس بھی جو ہے برآمد کیا جاتا ہے. جی شایان, بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے.